In our syllabus, there are around 24 or 25 topics, if you say topic wise. But before going into any study, a general taxation study, I am, as a Prakash Saraf, whatever earnings I am doing in India, I am paying taxation in India. I am not actually doing job anywhere, but if you say I am in Saraf Academy, Saraf Gurukul Private Limited, I am the director. And directors are treated as employee. So I am getting director remuneration from Saraf Gurukul Private Limited, Saraf Academy. That is, you can see my salary income. Then I have invested some money in share market. So those shares which I have purchased, I am getting dividend. And when I am selling those shares, then I am getting gain or loss on sale and purchase. Then you can say, suppose there are some independent organizations and they are asking some help from my side. Maybe suppose they are in an organization asking for their tutoring, maybe taking some webinar, maybe giving some help. So I will not be doing that as a free. That I will be doing against some consideration. So I am getting that type of consideration from ACCA, from SEMA Institute, from other corporates. Not very big amount, but some amount is there. Then earlier, not now, earlier, when the students were, you can say, purchasing the Kaplan material, then the Kaplan material we were getting at around 2100, we were selling to the students at 2199. So that 100 rupees is also a gain. Then you can see that suppose I have purchased some property, some gold, some silver, and I am selling that assets. Then I am gaining or losing on that sale of assets. I have done some fixed deposit in bank or maybe somewhere else, and I am getting interest income. There are two types of income anybody can generate in the world. Earned income, which we say active income, and passive income. Active income means getting remuneration from Saraf Academy to teach in the class, to do the business, is an active income. Active income, if I am connected with any organization, giving them consultancy and all that, that is active income, earned income. But then inactive or passive income, investing somewhere, getting dividend, investing somewhere, selling, that is a passive. You will say, usme bhi to buy, sell, but that is not, an action is required so much. I have given on rent some property, getting rent, that is not my active income. That is called passive income. But individuals, organizations all over the world are getting these types of incomes. Whether it's active, whether it's earned, whether it's unearned. On your entire income, you need to pay tax. Obviously, the tax is payable when your income will be breaching a particular level. If the income is within the breach point, within that level, then there is no taxes. So in India, we say that out of 140 crore of population, only 2 crore are paying taxes. Whatever the government, whether it's Mr. Modi, whether it's any government official, our country, security, everything, roads, development, infrastructure, education, everything is running by these 2 crore of person, those who are paying taxes. 2 करोड़ लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, उससे 140 करोड़ का काम चल रहा है. In every country, the tax is the means by which the government will be running the country. अगर टैक्स नहीं होगा तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? So government wants that the tax should increase. Government wants that more and more persons in India should be paying taxes. They will be paying taxes when their income will increase. They will be coming in the bracket which is beyond the minimum level of bracket. And government will be using that money for the development of the nation.
for infrastructure development, for education development, for security of the country, for paying salary to those who are working at administrative level in the country, in the government. अभी जो पार्लियामेंट बना है वो पार्लियामेंट का पैसा कहां से है? हम ही लोग दिए, मैंने भी दिया है, आपने भी दिया है, सब लोग दिए। नया पार्लियामेंट बनने का उतना सुंदर पार्लियामेंट पैसा तो लगा है ना। दैट इज ऑल गिवन बाय द टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री। द पार्लियामेंट बिलोंग्स टू द होल कंट्री। We always want that our income should be greater than our expenditures. I want that if my income monthly is 2 lakh, then my expenditure should be within 2 lakh. Maybe in a particular month, say the Diwali, Durga Puja or any time, in place of 2 lakh, I am expending 2,50,000. From where? From my earlier income. लेकिन normally तो हम चाहते हैं कि income should be greater than expenditures. In India, since independence till now, अभी तक कभी भी the government income is more than expenditure हुआ ही नहीं. Always the government expenditures are more than the government income. How this is possible? If my income is 2 lakh in a month and I am expending 2,50,000, how it is possible? If I have earlier savings that I can use, but if I don't have earlier savings, borrow करेंगे, government borrow करता है. Government is borrowing to meet the because government के पास surplus तो है ही नहीं ना. Surplus will be there when any time in the past your income was greater than expenditure. But in India, for that reason, we are a developing nation. We are not developed nation. Developed nation होने के लिए the surplus should be there. When the developed nation we will become, I don't know. I'm not criticizing India, but I'm just saying the facts. हर कंट्री का गवर्नमेंट बहुत सारा टाइप का टैक्स लगा कर रखा है। जो आप इनकम कमाते हो उसके ऊपर देयर इज प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स, दिस दैट, म्युनिसिपल टैक्स, बहुत सारा टैक्स है। सारा सिलेबस में नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब नहीं है। दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस बिकॉज दैट इज बियॉन्ड पार्लेंस ऑफ इनकम टैक्स। वी आर गोइंग टू स्टडी इनकम टैक्स। और उतना सारा टैक्स तो मेरे को इंडिया का भी सारा नियम कानून मालूम नहीं है, तो आप वो सब पूछेंगे, मेरे को आता ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। बट अभी यूके का इनकम टैक्स क्या है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी कैन डिवाइड द इंटायर इनकम विच एनी पर्सन जनरेट इनटू जनरली 5 पार्ट्स। वन इज द एम्प्लॉयमेंट इनकम एज एन एम्प्लॉय। आई एम अर्निंग एम्प्लॉयमेंट इनकम एज अ डायरेक्टर ऑफ सराफ गुरुकुल सराफ एकेडमी। I am earning that income. That is called employment income. I am earning. There is self-employment income, business income. I am doing some business in my own name. I am giving consultancy and all that to organizations. उससे जो पैसा आता है, that is self-employment. You can say business income. Then we can say that there is interest, dividend and all that, all those income, that is called savings income. Then we can say that if there is a property, I am letting it out and I am getting rental income, that is house property income. Rental income, house property income. Then we can say that we are selling, suppose I am selling some assets, some property which belongs to me, that is called a capital gain. इंडिया में भी है, यूके में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, सब जगह है। ऐसा मत सोचिए कि दिस इज ओनली यूके। अगर इफ एनीबडी हैज स्टडीड टैक्सेशन इन लाइफ, in India we have 5 heads of income. Income from salary, income from business and profession, income from capital gain, then what do you say? Salary, business and profession, capital gain, income from other sources which is not falling in those categories, and one more, house property income. In Indian Income Tax Act, since I studied taxation in CA, since 96-97, आज तक भी वही है, वही 5 heads है। कोई बोलेगा इनकम टैक्स तो हर साल नया आता है, तो यार इनकम थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, इनकम चोरी करके तो नहीं आएगी। तो इन इंडिया वी हैव 5 heads of income. Similarly, UK also, maybe the names are different, maybe the terminology is different, बात तो वहां भी वही है। सैलरी मतलब एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस बोल लीजिए। कैपिटल गेन जो इंटरेस्ट डिविडेंड है उसको वो लोग सेविंग्स इनकम बोलते हैं। दे यूज द वर्ड सेविंग्स इनकम। वी आर सेइंग अदर सोर्सेस।
हाउस प्रॉपर्टी को दे से प्रॉपर्टी इनकम, उनका भी वैसे ही. From all the income we get some deductions. If I am in India, from my total income some deductions are available. Why? If I am contributing money for the development of the nations, which the government is suggesting, then I will be getting some deductions. In India there is a section called 80C. 80C में है कि आप अगर यहां पैसे लगाओगे तो आपको 1,50,000 तक का डिडक्शंस मिलेगा. मैं ऐसे ही, यू डोंट नीड टू रिमेंबर 80C, आई एम जस्ट सेइंग. सिमिलरली यूके में भी है कि इफ देयर इज टोटल इनकम इज दिस एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, यू आर डूइंग दिस, then you will be getting the deduction from your income. From your income that will be deducted. You don't need to pay tax on that amount, even though you earned that income. But tax नहीं देना पड़ेगा, आपको relief मिल जाएगा. In UK they are using the word relief. In India we are using the word deductions. कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, रूल्स तो जानना होगा. After deducting that, whatever the balance amount comes, that balance amount is taxable. In India, the income tax slab, I don't remember, 2,50,000 तक 0, 2,50,000 to 5 lakh something, then 5 lakh से ज्यादा कुछ, मेरे को नहीं पूछना, मेरे को नहीं याद है. यूके का स्लैब अपना है इन पाउंड. अप टिल 37,700 पाउंड इट इज लड्डू. 37,700 से इतना लड्डू नहीं है वहां पर. अप टिल 37,700 इट इज 20%. 37,700 से लेकर 150 तक 40% एंड सो ऑन. We don't need to remember. It will be given in the exam, but you automatically remember when we will do that. आप वो टैक्स निकालोगे जितना आपका इनकम है. After getting the relief, you will be getting the amount which is taxable. The tax rate and slab is different for business income, employment income. For capital gain, it is different. For savings income, it is different. इंडिया में भी डिविडेंड के ऊपर टैक्स अलग है, सैलरी पे टैक्स अलग है, सब पे अलग अलग टैक्स है. यूके नहीं, इंडिया में भी. सारा कंट्री तो एक दूसरा को देखता है ना. एवरी कंट्री लुक आफ्टर अदर्स व्हाट दे आर डूइंग. इफ दे हैव अ बेटर प्रोविजन देन आवर्स, देन वी मेक दैट प्रोविजन इन आवर कंट्री ऑल्सो. मतलब आप ऐसा मत सोचना कि आप टैक्स पढ़ोगे तो इंडिया का टैक्स कुछ आएगा ही नहीं. सब आएगा भाई, सब कॉमन है. स्लैब परसेंटेज वगैरह अलग अलग है, बट अदरवाइज स्टोरी तो सेम है. और वो टैक्स हम लोग को गवर्नमेंट को देना है. इन इंडिया आवर ईयर इज फाइनेंशियल ईयर एंडिंग. वेदर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर मार्च और नॉट, बट इनकम टैक्स इज सेइंग दैट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 1st April to 31st March. In UK also financial year ending, but they say 6th April to 5th April. पता नहीं क्यों यार. They could have said 1st April to 31st March, but according to them the year is 6th April to 5th April. In exam, our year for calculating income is 6th April 2022 to 5th April 2023. 6th April 2022 to 5th April 2023. In India, अगर मैं बोलूं 1st April 2022 to 31st March 2023, साल बीत चुका है. In UK, India दोनों. For this year, the rules were announced in India in February 2022. अभी जो 23 से 24 का रूल है, that is already announced in the budget of 2023. आने वाले साल का रूल गवर्नमेंट 2 महीने पहले बता देती है. यूके में भी बता देती है. वैसे भी हम लोग तो ब्रिटिशर्स के बाद ही आए हैं यार, उन्हीं के अंडर थे हम लोग, उन्हीं का रूल्स लॉ फॉलो करते हैं. आई हैव नॉट सबमिटेड माई इनकम टैक्स रिटर्न बिकॉज रिटर्न सबमिट करने का टाइम टिल सितंबर. In India, the filing date, computing income, paying tax and all that can be done till September. तो अभी मेरे पास 3 महीना और है. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर रेडी है सब. टैक्स फैक्स भी पे कर दिया है, लेकिन डिटेल मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आई हैव नॉट येट सबमिटेड. यूके में भी लोगों का कुछ रूल है, उन लोगों का सितंबर नहीं है, थोड़ा पहले ही होता है. बट स्टिल वट एवर इज द डेट, आई मीन टू से दैट आपको एग्जाम में जो भी कोई आदमी यूके में है, कोई कॉर्पोरेट यूके में है, उसका इनकम 6th April 2022 से 5th April 2023 जो हुआ है उसका कंप्यूटेशन करना है. आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, if you can get hold of a client in UK
and you can help him to file the income tax return and all that, you will be able to give professional service and you will be earning. Possible है? क्यों नहीं possible है? थोड़ी ना कोई आपको इनकम कंप्यूटेशन वगैरह करने के लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री होना जरूरी है. There are so many agents in India who are non-qualified chartered accountants. There are so many agents in UK who are doing the filing of the income tax return on behalf of their clients. उसका पैसा मिलता है, पैसे मिलते हैं आपको प्रोफेशनल सर्विस की, आप कर सकते हो. When we are studying, study for that purpose, not study for exam. एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, अरे यार वो तो अपने आप हो जाएगा. आप ये सोचिए कि कोई भी आदमी यूके से आएगा तो आपको उसका इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करना आना चाहिए. आप उसको हेल्प कर पाए, गाइड कर पाए. द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट एनी स्टडी इज दिस ओनली, नॉट जस्ट पासिंग द एग्जाम, सॉल्विंग द क्वेश्चंस. दैट्स टोटली रॉन्ग वे टू स्टडी. तो यूके के अंदर भी ऐसे ही अलग अलग हेड है, फिर उसके बाद रिलीफ है, फिर उसके बाद बैलेंस अमाउंट पे टैक्स है, टैक्स का स्लैब है और पर्सन को वो टैक्स देना है. हम लोग पूरा सिलेबस में यही पढ़ने वाले. दिस इज तो जस्ट इंट्रोडक्शन. हम लोग पूरे सिलेबस में धीरे धीरे करके ये सब पढ़ने वाले. नाउ सपोज इन इंडिया व्हाट थिंग वी वांट टू प्रमोट, सपोज सोलर एनर्जी, सपोज एग्रीकल्चर, सपोज एजुकेशन, ये सब चीज हम प्रमोट करना चाहते हैं. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप इन सब चीजों के लिए दान दक्षिणा करेंगे, आप इन सब चीजों के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे या इन सब चीजों का बिजनेस करेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स कमती देना पड़ेगा. यूके में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सोलर एनर्जी, क्या यूके का ऑब्जेक्टिव अलग है? क्या उनको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना है? क्या उनको भी करना है? इन यूके देयर इज a tax on sugar consumption because of diabetes it is adverse effect on the health of the person and there is adverse effect on other person. तो अलग से सुगर टैक्स हमारे सिलेबस में नहीं है. These different types of taxes are. इंडिया में सुगर टैक्स अलग से नहीं है, अभी तो नहीं आया है. The government when they introduce tax laws in a country, they have a certain objective to achieve. Based on the objective they are making tax laws. वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टैक्स लगाया जाता है, टैक्स का छूट दिया जाता है. जो चीज को प्रमोट करना है टैक्स लेस, जीरो टैक्स. जो चीज को कर्ब करना है, रोकना है, मोर एंड मोर टैक्सेस. कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, सिगरेट, गवर्नमेंट को चाहिए लोग ये नहीं करें. इंडिया में भी यूके में भी भर्ती करके टैक्स है. इफ एनीबडी कंज्यूमिंग एल्कोहल और सिगरेट, उसमें आप 70-80% तो टैक्स का पैसा देते हैं. When I am purchasing a cigarette packet, if I am purchasing, then मान लीजिए 100 रुपए का पैकेट है, 100 रुपए का पैकेट में 60 से 70 रुपया टैक्स. The government don't want that the people should be consuming alcohol, tobacco and all that. They don't want. All over the world, not only in India and UK, सब जगह. ऊपर से डब्बे के ऊपर क्या लिखा रहता है? आप इसको यूज करोगे, it is affecting you, cancer and all that. फिर भी कोई सुनता है? नहीं सुनता है. नहीं सुन भाई, दोनों बात हमने कर दिया. डब्बा के ऊपर फोटो बना दिया, इट इज अफेक्टिंग योर लंग्स एंड ऑल दैट, एंड एट द सेम टाइम वी आर सेइंग सो मच टैक्सेस आर देयर, स्टिल यू आर नॉट एक्सेप्टिंग. डू दैट. कौन मना कर रहे? देयर आर मेनी हु आर चेन स्मोकर्स एंड ऑल दैट. वो लोग पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, हेल्थ भी बर्बाद कर रहे हैं. पूरा वर्ल्ड में ये रूल है. नाउ इन इंडिया व्हेन वी टॉक ऑफ आईटीसी कंपनी, आईटीसी टोबैको, आप कोई भी दुकान में सिगरेट जाकर खरीदेंगे, 90% से ज्यादा सिगरेट दुकान में जितना भी लगा हुआ है सब आईटीसी का है. सारा 90% से ज्यादा, वेदर इट्स एनी कंपनी, एनी, मेरे को मालूम नहीं है, जो भी है वो सब आईटीसी का है. आईटीसी कंपनी टैक्स देकर सिगरेट बनाता है. वो टैक्स का पैसा इज एडेड इन द सिगरेट वैल्यू एंड देन व्हेन वी आर परचेजिंग दैट सिगरेट वी आर पेइंग दैट टैक्सेस. तो यूके में जो सुगर बनाते हैं उनको सुगर बोलकर टैक्स दिया जाता है. वो सुगर का कॉस्ट में जुड़ जाता है एंड देन वी ऑल नीड टू पे परचेज सुगर इन यूके बाय पेइंग दोज टैक्सेस. आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट वैट इन यूके. आई एम टॉकिंग अबाउट जीएसटी इन इंडिया. Suppose somebody joined our classes, Iftikhar Muhammad, joined and paid 68,199
for 5 subjects of skill level. Or it may be Swaroop, paid 68,199 for 5 subjects of ACCA. इंडिया में रूल है कि आपको जो ट्यूशन फीस मिलेगी उस पे आपको 18% गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. दैट इज नॉट इनकम टैक्स, दैट इज जीएसटी, indirect tax. Why it is indirect tax? I am coming. Ki when you have paid me 68,199, that includes my tuition fees and that includes 18% tax. Suppose the tuition fees is 100 rupees. Then I will be taking from the customer, from the student 118. Because when you will give me 118, 18 I will give to government, I will left with 100 only. 18% is GST in India on my product, that is tuition income. So आपने जो 68,199 पे किया into 18 divided by 118, 68,199 into 18 divided by 118, how much it is coming? If the tuition fees is 100, tax is 18, total is 118. So 68,199 into 18 by 118, how much it is coming? 68,199 into 18 by 118, how much it is coming? I said everybody should be sitting in the class with a calculator. I am saying into 18 by 118. आप कर रहे हैं into 100 by 118. 68,199 into 18 by 118. So it is coming 10,403. अलग अलग फिगर बोल रहे हैं आप लोग. 68,199 into 18 by 118. Suppose it is coming 10,403. तो आपसे जो पैसा मिला उसमें से 10,403 मैंने गवर्नमेंट को दे दिया. कब दिया? Whatever my tuition fees collection in the month of June, I will pay the tax GST by 20th of July. तो अभी मैं मई महीना का 28 जून तक पे करूंगा. अभी तक पे नहीं किया है, करना है. जितना ट्यूशन फीस आया वो सब ट्यूशन फीस पे मेरे को 18% गवर्नमेंट को टैक्स देना है. So I always say that when you all are paying me 68, I am getting 58 only, 57 only. फिर उसके बाद स्टूडेंट बोलता है डिस्काउंट. ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं. तो फॉर ईच सब्जेक्ट आई एम टीचिंग अराउंड 90 आवर्स. So 5 subjects, it's live class, not recorded, sir. It's pure live class. Because I feel good when I teach live class. अब आप कुछ अलग बोल रहे हैं, मालूम नहीं यार, जो भी है, ठीक है. उस पे नहीं जा रहे. हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, for every hour, I am charging 100 to 120 rupees. Now when I am teaching in the class, there is air condition, internet, laptop, there is staff, those who are there, सारे खर्चे हैं. पर आवर का चार्जेस 100 से 120 रुपया. और कितना सस्ता मिलेगा यार, नहीं मिल सकता है. When you come on the other side of the table, you will understand कि भाई स्टूडेंट नहीं आएगा, ये सब पैसा तो लगेगा ही ना. तो in that case, it is very essential that I should be cover my expenditures. Otherwise, how I will able to earn? How I will be getting any direct remuneration from the company? Nothing possible. फिर भी स्टूडेंट अगर बोलता है कोई डिस्काउंट किसी के लिए नहीं है. If somebody will say that we are 10 students going to join, for everyone you need to pay the same fees. No discount on bulk or anything. बस इतना है कि if you are joining for one subject, the fees is higher. If you join for 2, 3, 4 subjects, then the fees is lower. That benefit I am giving. But there is no change in the fees. If you find anywhere, nowhere in any website fees are written. Why not written, I don't know. But only Saraf Academy website you will find all fees are written purely for everybody. But not any learning partner, nobody is mentioning the fees what they are charging. That means there is no fixed fees. जिसका मुंह देखो वैसे. I am just saying. This 12,275 I am paying to government, but this is not paid by me. This is paid by you. You have paid tuition fees. And in the tuition fees, 12,275 is the tax amount which I am paying to government after collecting from you. But when I am paying income tax, when I am paying tax on my income, then I am paying from my pocket. Income tax is a direct tax which you pay on your income.
but this is indirect tax. In UK this is called VAT, value added tax. आप एक बात सोचिए, आप मेरे को ट्यूशन फीस मत सोचिए. आप मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, तो खाने का पैसा आप रेस्टोरेंट वाले को दे रहे, उसमें भी जीएसटी है. आप कोई कंप्यूटर खरीद रहे हैं, लैपटॉप खरीद रहे हैं, आप कोई स्टेशनरी खरीद रहे हैं, आप कपड़ा खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, सब में जीएसटी है. आप दिन में जितना भी खर्चा करते हैं, हर आइटम पे जीएसटी है, हर आइटम पे. आपने केवल मेरे को टैक्स नहीं दिया है, सबको दिया है. एंड मी ऑल्सो इन सराफ एकेडमी, इन माई पर्सनल लाइफ, वट एवर एक्सपेंडिचर्स आई एम डूइंग डेली, सब पे टैक्स जुड़ा हुआ है, सब पे. But I am not paying that tax directly to government. I am paying to the supplier who is supplying me the goods and services, and that supplier is paying GST to government. This is indirect tax because the burden is by that person who is consuming the goods and services. But the payment to the government is not by that person. Payment to the government by the intermediary. I am paying GST to government, but I am not bearing the burden of GST. You all are bearing the burden of GST. गवर्नमेंट के पास दो तरह से इनकम आ रही है, वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स तो 2 करोड़ लोग हैं, ओनली 2 करोड़ आर पेइंग डायरेक्ट टैक्स. बट इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे कर रहे हैं? गरीब आदमी भी पे कर रहा है, जिसका इनकम नहीं है वो भी पे कर रहा है. इफ देयर इज समबडी इज डूइंग जॉब डेली बेसिस और 500 रुपया उसको मिलता है, तो महीना में 15,000, 500 रुपए खर्चा तो करता होगा ना कहीं. वट एवर एक्सपेंडिचर ही इज डूइंग, टैक्स उसमें जा रहा है उसका. यानी कि गवर्नमेंट इज रनिंग द कंट्री नॉट ओनली विद द डायरेक्ट टैक्स, विद द इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स इज नॉट सफिशिएंट टू रन द कंट्री. अगर गवर्नमेंट जीएसटी वगैरह सब गिरा दे, हटा दे, तो क्या होएगा? जितना सामान मार्केट में सबका दाम सस्ता हो जाएगा. ट्यूशन फीस विल बी इन प्लेस ऑफ 68, इट विल बी 56,000, बिकॉज अल्टीमेटली तो मेरे को आपसे 56 ही लेना है ना. वो तो 58 हो, 68 करना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट का टैक्स है. सो इफ द गवर्नमेंट विल रिड्यूस जीएसटी रेट, इफ द गवर्नमेंट विल रिड्यूस वैट रेट इन यूके, तो इन दैट केस सभी सामान का चीज का वैल्यू कम हो जाएगा. वी डोंट नीड टू पे टैक्सेस. हर कंट्री ये सोचता है इनकम टैक्स तो वो देगा जो इनकम कमाएगा, बट इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग देंगे. जीएसटी वैट एवरीबडी विल गिव. With the GST VAT, the country is running more as compared to direct tax. Because direct tax will be paid only by those who are earning proper income. We have in our syllabus all the separate topics. For employment salary, there is a topic. For property income, there is a topic. For business income, there is a topic. For saving income, which is dividend income, interest income, there is a topic. For capital gain, there is a topic. For relief, there is a topic. For what I should say, VAT, GST, there is a topic. Then how these things are managed? Income tax authority, commissioners, sub-commissioners, then other, what is the administration, what is the return filing date, what are the types of forms and all that to be filled up, when they need to be submitted. Administrative rules, there is a topic. For administration of direct tax, there is a separate topic. For administration of indirect tax, there is a separate topic. सारा चीज जिंदगी से रिलेटेड है. आप अगर केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं. ऑल आर रिलेटेड. आप भी पैसे कमाते हो. मान लीजिए यू आर मदुराई, पापा है, मम्मी है, उन लोग भी कमाते हैं, उन लोग भी कहीं जॉब करते हैं, सैलरी करते हैं, उन लोग अपना इनकम टैक्स, उनमें दिमाग लगाइए. क्लास में कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करिए. इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आपकी कंपनी में इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल होता होगा, आपका अपना इनकम टैक्स होता होगा, ध्यान दीजिए उस पर. केवल हवा में केवल चीजों को याद मत करिए, नो फायदा ऑफ दिस. अप्लाई योर कॉमन सेंस. जब आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो उठ पटांग, उल्टा पुल्टा डाउट आएगा नहीं. बट आप कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे तो आप एक सिंपल चीज को भी इतना डिफिकल्ट वे में समझेंगे कि रिवाइज करते करते माइंड खराब हो जाएगा. इसमें कोई, आई कैन टीच दिस टू माई सन 10 years एज, बिलीव मी, ही विल सिट इन द क्लास, आई विल एक्सप्लेन हिम, बट आपको मेरा बात मानना तो होगा ना. So when the student are raising illogical doubts, I always curse myself.
वाई ही इज नॉट अप्लाइंग कॉमन सेंस ब्रेन? भाई कोई प्रोविजन है वो तो बाद की बात है, कॉमन सेंस ही नहीं लगा रहे, एंड देन यू आर रेजिंग इलॉजिकल डाउट्स, लिख लिख के कॉपी पेन में बात सुन रहे नहीं। मेरे को मन में चोट लगती है, कहां से अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? कुछ नहीं। बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, कि इनकम है, कहां से हो सकता है, फिक्स्ड है, कोई 5000 तरीका नहीं है इनकम का। देयर आर 4, 5, 6 सोर्सेस ऑफ इनकम। फॉर एवरी इनकम देयर इज अ प्रोविजन इन द इनकम टैक्स एक्ट। वो प्रोविजन वैसा क्यों बना उसका भी लॉजिक है, लॉजिक इज देयर। Go into logic, understand the logic. Then you need to remember less, and based on the logic and understanding, solve some questions. Question not in pen and paper, on a screen, on Word file, Excel file. बहुत simple है, कुछ नहीं. Now this first topic, which is the part of the syllabus, इस एग्जाम में कुछ आता नहीं. This first topic is what I was saying, a general introduction, a general common sense. भाई टैक्स पढ़ाने के पहले टैक्स क्या होता है समझाएंगे तो सही ना. सो इन द फर्स्ट टॉपिक इन द एग्जाम नथिंग कम्स, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट यूके टैक्सेशन. आप इंडियन टैक्सेशन का भी ऐसा चीज होता है, सब जगह होता है. व्हाट दे आर सेइंग टेक्निकली, द फ्लो चार्ट इज सेइंग दैट यूके टैक्स सिस्टम, देयर आर 3 पार्ट्स. वन इज टाइप्स ऑफ टैक्स, वन इज स्ट्रक्चर, एंड वन इज यू कैन से एथिक्स, गाइडेंस एंड ऑल दैट. Under types of tax, they are saying what? Direct tax, indirect tax. Direct tax, every tax other than VAT. Indirect tax, VAT. वैसे indirect tax में और भी चीज होता है. In the indirect tax, there are other than VAT also there. Suppose in the indirect tax, I will say property tax. I am purchasing a property and I am paying tax on property to another person. The person who is selling me the property. वो भी indirect tax. That is not there in our syllabus. Whether it is there in the professional level advanced taxation or not, मेरे को नहीं मालूम है. लेकिन अभी हम लोग के indirect tax में only one thing, VAT. In India GST, there VAT. थोड़ा सा direct indirect tax को बताया गया. Structure. In India we have income tax department, the income tax authority. वहां पर जो है HM Revenue and Council, HMRC. SMRC is the authority who are making tax laws, regulations relating to every taxes. तो HMRC के अंदर हेड कौन है, उसके नीचे कौन है, what are the types of documents they publish, ये सब बताया गया है. Structure. Then it is saying under UK tax system, other than types of tax and the structure, the other areas are professional and ethical guidance, tax avoidance and tax evasion, dealing with HMRC, money laundering regulations, interaction of UK tax with the international body, source of tax laws, that is structure, case law and HMRC guidance. ये सब क्या है? What about duties means? Not getting, sir. हेमराज जी समझ में नहीं आया. ड्यूटीज आता है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह ये सब मेरे ख्याल से वो लोग एडवांस टैक्सेशन में डाले होंगे, यहां नहीं. कस्टम्स एक्ट, सो उन्होंने यहां पर केवल वैट डाला है, कस्टम्स एक्ट नहीं डाला है. जहां तक मेरे को पता है कि इंडियन कोर्सेस अगर सीए वगैरह कोई पढ़ रहा है तो सीए का इंटर सिलेबस में कस्टम्स एक्ट नहीं आता है. सीए फाइनल का सिलेबस में कस्टम्स एक्ट आता है, तो उन लोग के लिए भी एटीएक्स में डाला होगा, एडवांस टैक्सेशन. यहां नहीं है. मतलब बहुत सारा टाइप का टैक्स है जो आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में प्रॉपर्टी टैक्स है, आपके सिलेबस में कैपिटल गेन टैक्स है, आपके सिलेबस में बिजनेस इनकम टैक्स है, आपके सिलेबस में सैलरी इंप्लॉय वाला इंप्लॉयमेंट टैक्स है, आपके सिलेबस में सेविंग्स इनकम टैक्स है, आपके सिलेबस में वैट, बस और नहीं है सर. तो और टैक्सेस होते हैं बट वो सिलेबस में नहीं डाले हुए हैं सर. ठीक है. नाउ प्रोफेशनल और एथिकल का मतलब होता है कि इफ आई एम इन इंडिया एंड आई एम ए जेन्युइन सिटीजन, जेन्युइन रेसिडेंशियल पर्सन ऑफ इंडिया, आई एम एथिकल, तो मैं अपना इनकम सही सही निकालूंगा, सही सही खर्चा उसमें से लेस करूंगा, एंड देन आई विल बी पेइंग करेक्ट टैक्सेस टू गवर्नमेंट. इफ आई एम डूइंग दैट आई एम एथिकल, बट इफ आई एम नॉट डूइंग दैट आई एम अनएथिकल.
दुनिया में ऐसे लोग हैं क्या क्यों अपनी इनकम गलत बताते हैं गवर्नमेंट को, खर्चा ज्यादा क्लेम कर लेते हैं, इनकम पूरी नहीं दिखाते, गंडागोल करते हैं, ऐसे लोग हैं क्या? बढ़ती है, यूके में भी है, इंडिया में भी है. सो इफ वी आर डूइंग दैट, दैट मीन्स वी आर अनएथिकल. वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशंस, मे बी इंटेंशनली, मे बी अनइंटेंशनली. इंटेंशनली तो खराब है, अनइंटेंशनली आपको कोई टैक्स प्रोविजन समझ में नहीं आया and you are doing some wrong thing, wrong calculations, that is also unethical. Because ignorance leminen excusat. अज्ञानता के कारण कोई चीज गलत करना भी खराब माना जाता है. तो अपने बोल रहे हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, जो नियम कानून गाइडलाइंस है उनको मानना है. और उनको मानना केवल आपको नहीं है, आपका कोई टैक्स, सपोज आई एम एडवाइजिंग योर टैक्सेशन पार्टनर, आई एम टैक्स एजेंट, आई एम योर एजेंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम एडवाइजिंग. तो मेरे आपको ऑलवेज एथिकल एडवाइस देना है कि भाई इनकम सही से निकालो, पूरा निकालो, खर्चा क्लेम मत करो जो गलत है, एंड पे प्रॉपर टैक्सेस टू गवर्नमेंट. बिकॉज वी कैन मेंटेन लॉज एंड रेगुलेशंस इन द कंट्री व्हेन वी मेक आवर पब्लिक प्रोफेशनल एंड एथिकल. व्हेन वी डेवलप टैक्स एजेंट्स, कि टैक्स कंप्यूटेशन हर आदमी को नहीं आता है, एवरीबडी अ डॉक्टर और एनीबडी इज नॉट नोइंग द टैक्सेशन स्ट्रक्चर. तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए देयर शुड बी टैक्स एजेंट्स. तो टैक्स एजेंट्स उनके लिए होना जरूरी है. वो सभी लोग जब होंगे, एथिकल होंगे, देन इन दैट केस द टैक्स लॉस कैन बी अप्लाइड. अपने लैंग्वेज में उन्होंने एथिक्स को लिखा है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑल दैट. मैं आऊंगा, अभी मैं कॉमन जनरल नॉलेज बात कर रहा हूं जिसका कोई राइटअप से मतलब नहीं है. टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन मींस, टैक्स अवॉइडेंस मींस सेविंग टैक्सेस बाय लीगल, बाय those provisions which are there in the income tax act. but tax evasion means चोरी से टैक्स बचाना. अगर आप टैक्स इवेजन करोगे तो फाइन्स, पेनल्टीज, इंप्रोसोनमेंट, ऑल दीज थिंग्स विल कम. बट अगर आप टैक्स अवॉइडेंस करोगे तो कुछ नहीं किया जा सकता. जैसे मान लीजिए हमारे फैमिली में मी, माई वाइफ, माई सन, माई कंपनी, माई HUF, तो मेरा 2,50,000 तक इनकम पे टैक्स जीरो. My Hindu undivided family, Prakash Saraf, HUF, actually there, 2,50,000 तक टैक्स जीरो. My wife 2,50,000 तक टैक्स जीरो. तो हम सारा इनकम प्रकाश सराफ के नाम में क्यों जनरेट करेंगे? Why not to generate income in 4 different files, so that everywhere I will be getting the basic exemption limit and my tax income, my taxable amount will be less. इतना बुद्धि तो लगाएंगे. ये दुनिया में हर कंट्री में लोग लगाते हैं. This is tax avoidance. Tax avoidance means by applying the rules, regulations, loopholes of the Income Tax Act, we are saving taxes. But tax evasion means we are violating the rules, regulations, norms. We are concealing the facts. We are not disclosing the correct income. Wrong, then it is called tax evasion. ऐसे गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स अवॉइडेंस भी ना हो. Whenever they come to know that something is not logical, which the taxpayers are enjoying, then government change the laws. Because if you discuss that at higher level of ethics, even the tax avoidance is also unethical. Because maybe provisions है, लेकिन वो provisions हम लोग को as a chartered accountant, as a practitioner, government को बताना है कि this provision should change, so that the tax avoidance will not be happening. But then tax avoidance is legal and tax evasion is illegal. Dealing with HMRC. Dealing with HMRC, suppose I am in UK, I am earning all these income which I am doing in India. तो मेरे को वो सारा इनकम सही सही निकाल के, सही से कैलकुलेशन करके टैक्स जमा करना है गवर्नमेंट को, इनकम बताना है, टैक्स पेमेंट करना है. बट इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, मे बी इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, देयर इज सम टैक्स एजेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर हु इज हेल्पिंग मी, एंड ही फाउंड दोज एरर्स. ही विल बी टेलिंग मी, प्रकाश जी ये सब आप गलत कर रहे हैं, don't do this, rectify this. But still I am not hearing him. He is telling me, if you do this Prakash ji, you will be under jail, you will be paying fines, penalties, ये सब होएगा. फिर भी मैं नहीं सुन रहा. उसके बाद उस पर्सन को क्या करना है? If he found that I am doing grossly very big mistakes and all that, and he has communicated me, still I am not doing things correct, still मैं नहीं मान रहा, तो in that case उसको मेरा काम छोड़ देना है. The tax agent should leave my job, should leave giving advice to me, and the tax agent should inform to the government that he has left Prakash Saraf taxation work.
ही इज नॉट सेइंग टू द गवर्नमेंट कि भाई प्रकाश सराफ इज डूइंग दिस बैड थिंग, वो नहीं बोलेगा वो, बिकॉज ही इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ प्रकाश सराफ एंड विद द यूके इनकम टैक्स गवर्नमेंट, एचएमआरसी, दोनों से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने काम छोड़ दिया बिकॉज गलत आदमी है प्रकाश सराफ, और उसने गवर्नमेंट को बता दिया कि मैंने प्रकाश सराफ का टैक्स कंसल्टेंसी छोड़ दिया, बस इतना। बट इफ सपोज प्रकाश सराफ इज एंगेज्ड इनटू व्हाट डू यू से, हवाला, money laundering, something like that which is illegal, तब in that case उसको किसको बताना है? The tax advisor, the tax consultant should be involving to NCLT. NCLT तो इंडिया में बोलते हैं NCL या NCT, जो भी वो लोग बोला है कि नेशनल क्रिमिनल एजेंसी और नेशनल क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल एक्ट के अंदर वो सब आता है जो सब चीज क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड है। So all those criminal things if I am doing, then my tax advisor will be reporting to NCA in a proper way and format, that is, ये dealing with HMRC का बात किया हुआ है। How you will deal with the HMRC? Money laundering cases को in big companies there will be a MLRO, money laundering relationship officer. So the tax advisors will be reporting to MLRO, and if it is required, it should be reported to NCA, National Criminal Agency also. When you are reporting to National Criminal Agency, don't say to the client you have reported to National Criminal Agency, because फिर तो client क्या करेगा, सब सबूत मिटा देगा, which you have seen in the movies and all that. If something known to government, we start hiding those things. So when you report to the National Criminal Agency, then don't say to the client that you have reported them. Then international, मान लीजिए मेरा इनकम इंडिया में भी है, यूके में भी है, टैक्स कहां देना है? यूके इनकम पे टैक्स यूके में देना है, इंडियन इनकम पे टैक्स इंडिया में देना है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होता है, भाई ये टैक्स कहां पर लगेगा? यू डोंट नीड टू पे टैक्स ऑन द सेम इनकम इन टू कंट्रीज। देयर इज अ डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज। इनकम विल बी टैक्स्ड वंस, नॉट ट्वाइस। एक जगह अगर टैक्स लग गया तो दूसरी जगह वापस टैक्स नहीं लगेगा, या तो दूसरे जगह एग्जम्प्ट, या वॉट एवर टैक्स यू पेड दैट यू विल गेट बैक फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। मान लीजिए सपोज माई इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, नाउ द सेम इनकम इज टैक्सेबल इन यूके, आई हैव पेड टैक्सेस इन इंडिया, सो इन यूके आई शुड नॉट बी पेइंग टैक्स ऑन दैट, बट इफ आई एम पेइंग, देन वॉट एवर टैक्स इन यूके माइनस द टैक्स पेड इन इंडिया, बैलेंस आई विल पे इन यूके। देयर आर डिफरेंट क्लॉजेस आर देयर, बट दुनिया भर में, होल वर्ल्ड, वन इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल ट्वाइस, दैट सिंपल रूल। डबल टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है प्रोविजंस, बिकॉज दैट इज वेरी डिटेल्ड प्रोविजंस, दे आर देयर इन द एडवांस टैक्स, बट फिर भी बताया है। ये जो टैक्स लॉज वगैरह, इनका सोर्स क्या है? वन इज द गवर्नमेंट इज पब्लिशिंग बजट लाइक इन इंडिया इन फेब्रुअरी, विच इज कॉल्ड स्टैट्यूट और लॉ, बट लॉ बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है, लाइक वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, वी आर अंडर कंफ्यूजन। Similarly, in the practical life, something is said in the law, but it is confusing. So there is a case against that law in the income tax department, in the tribunal, in the Supreme Court, High Court, wherever. और वो case का decision is different than what is written in the law. Then that case law decision becomes the law for future. Maybe the statute is different, but whatever decision taken in the case, that is decided as a law. यानी कि ओनली द लॉ मेड इज नॉट अ लॉ, अदर देन दैट द केस लॉ इज ऑल्सो अ लॉ। एंड HMRC गाइडेंस, व्हेन समथिंग HMRC इज राइटिंग एज अ लॉ, बट इट इज नॉट इजिली इंटरप्रिटेबल, इट इज वेरी टेक्निकल, देन HMRC गाइडेंस, HMRC बहुत सारा पब्लिकेशंस निकालता है, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स का बहुत सारा पब्लिकेशंस आता है, आप उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बेसिस पे टैक्स कंप्यूटेशंस हैपेंस, दैट इज कॉल्ड HMRC गाइडेंस। ये तीनों चीज ही इज अ सोर्स ऑफ लॉ एंड टैक्सेस। अगर यूके में है तो मे बी प्रेजेंटली द यूके इज ब्रेक्सिट, बट अर्लियर दे वेयर बिलोंगिंग टू यूरोपियन यूनियन, देन देयर टैक्स लॉज एंड ऑल दैट डिपेंडेंट ऑन यूरोपियन यूनियन गाइडलाइंस ऑल्सो। अभी मान लीजिए सपोज इंडिया इज रिलेटेड विद सार्क कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्रीज एंड ऑल दैट, हो सकता है कुछ कुछ लॉज रेगुलेशन बेस्ड ऑन दैट। जब आप कोई कम्युनिटी वगैरह को ज्वाइंट करके रखें तो आपको कम्युनिटी की बात माननी पड़ती है। Those are the sources from where the laws are made to make the laws in the country. This is
देयर इज नो क्वेश्चन इन एग्जाम, कभी कभी कोई टैक्स अवॉइडेंस इवेजन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, कभी जस्ट मल्टीपल चॉइस आउट पार्टी आउट ऑफ 15 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन बस। ये मान लीजिए कभी कोई पार्ट सी के अंदर 2 मार्क्स का थ्योरी लिखने आ गया, टैक्स अवॉइडेंस टैक्स इवेजन लिखिए। नाउ इफ यू रीड फ्रॉम समवेयर, मे बी फ्रॉम क्लास स्लाइड्स, और क्या वही कॉमा फुल स्टॉप याद करेंगे? मत करना यार, प्लीज यार, डोंट डू दैट। इट्स अ प्रेटी प्रैक्टिकल थिंग। आपको चीजों को ओपन एंडेड कॉमन सेंस में समझना है। वैसे भी इस पूरा चैप्टर से 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आता नहीं इफ यू से एग्जाम मार्किंग वाइज, बट दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, दैट दे आर सेइंग यूके टैक्सेशन इंट्रोडक्शन। आई एम नॉट रीडिंग एवरी स्टफ, जस्ट जहां मेरे को फीलिंग आ रहा है मैं वहां रीड कर रहा हूं। द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल। गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में बीजेपी अभी गवर्नमेंट है, सो बीजेपी को कहां कहां पैसा खर्चा करना है, कंट्री को कहां ले जाना है, उसके ऊपर टैक्स स्ट्रक्चर डिपेंड्स। टैक्सेशन पॉलिसीज हैव बीन यूज्ड टू इन्फ्लुएंस many economic factors, inflation, employment level, import, export, prices of the goods and services, सभी चीजों के ऊपर टैक्स डिपेंड करता है। टैक्स इज ऑल्सो यूज्ड टू डायरेक्ट द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। द करंट यूके सिस्टम इनकरेजेस, ये सब इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल है। इवन यूके में टैक्स सिस्टम अभी ये सब इंकरेज करता है। इंडिविजुअल सेविंग हैबिट्स बाय ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव्स ऑन सेविंग्स। इंडिया में 80C सेक्शन है, आप 80C में जो लिखा वहां पैसे जमा करोगे आपका इनकम कम हो जाएगा, यू डोंट नीड टू पे। वहां पर भी इंडिविजुअल सेविंग स्कीम्स है, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स, आप वहां पर पैसे लगाओगे आपका इनकम कम हो जाएगा। दे वांट टू प्रमोट दोस टाइप्स ऑफ सेविंग्स। लाइक इन इंडिया वी हैव PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फॉर एम्प्लॉइज इट इज recognized प्रोविडेंट फंड। वी हैव नेशनल इंश्योरेंस स्कीम्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स आर देयर जो कि इस कैटेगरी के अंदर आता है। वहां पर भी है, गवर्नमेंट चाहता है लोग पैसा अपना सेव करें, पैसा वहां लगाएं जो कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होए, सो दैट टाइप ऑफ प्रमोशन इज देयर। चैरिटेबल डोनेशंस बाय ऑफरिंग टैक्स रिलीफ थ्रू गिफ्ट एंड स्कीम। आप अगर चैरिटी कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं, और यू आर डूइंग चैरिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस, आपको चैरिटी के अगेंस्ट में डिडक्शंस मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय ऑफरिंग टैक्स रिलीफ एंड स्कीम्स। There are some businesses where there is no taxes, where lower tax, where lower VAT and all that. Because they are related with education, they are related with infrastructure, they are related with carbon emissions, something like that. तो उन सब के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। टैक्स स्ट्रक्चर इज मेड लाइक दिस, गवर्नमेंट इज प्रपोर्टिंग। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इट इज जस्ट गिविंग यू फीलिंग कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेता है। कोई को लगेगा गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेता है, भाई घर चलाने के लिए पैसा चाहिएगा ना। तो ये कंट्री एक घर है, दिस होल कंट्री इज अ हाउस। तो घर को रन करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए पैसे चाहिएंगे। तो अगर टैक्स नहीं होगा तो कंट्री कैसे रन करेगा। अब श्रीलंका तो बनना नहीं है कि भाई बोलेंगे जैसे नॉर्मली देयर आर मेनी पार्टीज इन इंडिया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री दिस। अरे भाई फ्री दे देगा, कंट्री चलेगा कैसे। आप एक बार तो इलेक्शन में जीतने के लिए सब फ्री दे देगा, उसके बाद क्या होएगा, जब पैसा ही नहीं आएगा तो आपको सैलरी कहां से मिलेगा। How the PM, how the Prime Minister, how the President, how the other Parliament members will be getting money? How they will be promoting education? क्या फ्री में देकर? No. You can't run a house without earning. पैसा जीवन में बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है। तो कोई भी गवर्नमेंट, अगर कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा फ्री में चीज देने की बात कर रहे हैं, सब फालतू बात कर रहे हैं। वो पावर में जब आएगा 6 महीना फ्री में देगा, 6 महीना बाद सब बंद कर देगा, और नहीं तो फिर इंडिया भी श्रीलंका बन जाएगा, समझ लेना भाई। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दैट फ्री में कुछ नहीं होता है। जो खर्चा लग रहा है वो कवर करना पड़े कम से कम। चैरिटी मीन्स वट एवर एक्सपेंडिचर यू आर इनकरिंग दैट यू आर कवरिंग। अगर कोई चैरिटी गरीबों को पैसा देता है तो गरीबों को पैसा देने के लिए पैसा आना तो चाहिए ना, चोरी करके थोड़ी न लाएंगे। चैरिटी कैन बी डन बाय हैविंग मनी, without money charity cannot be done. Similarly the UK government discourages petrol और डीजल का यूसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लेस कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस बढ़ाना, जीएसटी रेट बढ़ाना, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल इंडिया में भी है, कहां नहीं है, सब है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन पे टैक्सेस बढ़ाना, रोड टैक्स वगैरह बढ़ाना,
As a government objective changes, taxation policies changes. जब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो टैक्स पॉलिसी भी चेंज होती है. टैक्स स्ट्रैटेजीज जो कि इंडिया में भी है. देयर विल बी नो क्वेश्चन इन एग्जाम ऑन दिस. इतना कॉमन सेंस हम लोग को पता है. टैक्स स्ट्रैटेजीज आर सेट आउट बाय पॉलिटिकल पार्टीज हु आर वोटेड फॉर बाय द यूके पब्लिक एज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. टैक्स पॉलिसीज अभी इंडिया में कौन ला रहा है? बीजेपी. जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट होगा वो लाएगा. तो अगर हम लोग बीजेपी के बजाय दूसरे गवर्नमेंट कांग्रेस को ले आए, मिली जुली सरकार ले, वो लोग टैक्स पॉलिसी लाएंगे. अब वो सही होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है. रूलिंग पार्टी जिसको हम लोग वोट देकर जिताते हैं वो लोग टैक्स पॉलिसी लेकर आते हैं. चाइना में क्या होता है? चाइना में तो इलेक्शन नहीं है. इट्स नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री. चाइना में जो गवर्नमेंट है बस जो बोलेगा वो करना होगा, दैट्स ऑल. यहां पर तो फिर भी नियम कानून इलेक्शन वगैरह ये सब है. The types of taxation structure imposed has a direct impact on the redistribution of wealth of the country. अगर गवर्नमेंट को कहीं पर भी इनकम कम करना है, लोगों को प्रॉब्लम देना है, कहीं पर बढ़ाना है, इनकम किसके पास कितना बचेगा, तो गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर लाती है. गवर्नमेंट चाहती है कि टोबैको वगैरह का कंजम्पशन कम हो, तो गवर्नमेंट आईटीसी से 60-70% टोबैको पे तो टैक्स ही ले लेता है. बचता थोड़ी ना ज्यादा. आप सोचेगा सिगरेट का दाम बहुत ज्यादा है, नहीं है. और वैसे भी आईटीसी सिगरेट का दाम बढ़ाए और बढ़िए. व्हाई नॉट? बिकॉज व्हाई दैट समबडी, इफ वी आर सेइंग देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग सिगरेट, टोबैको एंड अल्कोहल, तो क्यों नहीं उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए? जिस आदमी को इतना जरूरत है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, दे टैक्स. मे बी दोज हु आर कंज्यूमिंग सिगरेट, स्मोकिंग एंड ऑल दैट, दे विल नॉट लाइक दिस, बट इट्स अ फैक्ट सर, कि आप अपना हेल्थ भी खराब कर रहे हैं, आप अपना पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं. हमारे यहां स्टाफ काम करता है, सैलरी इज 13,000 पर मंथ. इन अ डे ही इज डूइंग स्मोकिंग फॉर 6 to 7 times. तो यार 13,000 रुपया मान लीजिए पर डे ही इज अर्निंग से 350-400 रुपीज, 400 करीब आ रहा है, 400 समथिंग. 100 रुपया तो सिगरेट में लगा दे रहा है डेली. क्या तो फैमिली को पैसा देगा, और अपना हेल्थ जो खराब कर रहा है ऊपर से और टैक्स होना चाहिए. बिकॉज देन ओनली वी कैन डिस्करेज दीज टाइप्स ऑफ पर्संस नॉट टू कंज्यूम. The main taxation principles are listed below. The arguments for and against of this is a matter of debate. जैसा मैंने बोला कि हमारे यहां जो स्टाफ है बोलेगा सर टैक्स सिगरेट के ऊपर कम होना चाहिए, मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए. 10 रुपए का सिगरेट का 100 रुपया हो जाना चाहिए, 90 रुपया टैक्स, झमेला ही खत्म, टेंशन ओवर. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट टैक्स व्हेन यू पे फ्रॉम योर पॉकेट. अब डायरेक्ट टैक्स का कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड ऑल दैट. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम. इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन. यू हैव पेड ट्यूशन फीस का जीएसटी, आई हैव नॉट पेड. यू हैव कंज्यूम्ड, यू आर कंज्यूमिंग द ट्यूशन क्लासेस, you are taking the service, you have paid me the GST and I am paying to government. So it is an indirect tax. US के, UK के अंदर VAT. Progressive versus regressive tax. Progressive, these increases with income increases. Income tax rate rises on higher income. In all over the world, even in the next chapter, we will study 37,700 tak zero. Sorry, 20%. 37,700 to 1,50,000, 40%. Beyond 1,50,000, 45%. इंडिया में भी 2,50,000 तक लड्डू, 2,50,000 to 5,00,000, 10%. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. रिग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स गिरेगा. मेरे को तो नहीं लगता है कोई भी कंट्री में है, लेकिन यूके के अंदर एक नेशनल इंश्योरेंस, इंडिया में भी है. पेंशन कंट्रीब्यूशन जब आप करते हैं तो पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना आपको करना है. तो नॉर्मली जनरली इस टाइप का टैक्स रिग्रेसिव इज नॉट देयर, बिकॉज नॉर्मली वी से दैट इनकम टैक्स शुड बी अ प्रोग्रेसिव टैक्स. जिसके पास ज्यादा इनकम उसको ज्यादा टैक्स देना है, बट इट इज डिबेटेबल. मान लीजिए अंबानी बोलेगा ज्यादा टैक्स ज्यादा इनकम पे क्यों देना है, नहीं होना चाहिए. हम तो दुनिया का भला कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहा है, इतना इंप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं. व्हाई द गवर्नमेंट इज आस्किंग सो मेनी टैक्सेस? जस्ट नाउ a sneer grower has said in a forum that in India the tax should be made flat 20%. Jitna bhi income 20%. Then in place of 2 crore there will be 5 crore, 10 crore persons will be paying tax. Government के पास टैक्स और ज्यादा आएगा, बट इतना ज्यादा 40-45% टैक्स करने से क्या होता है? The people think about tax avoidance, tax evasion and all that. और गवर्नमेंट सबको तो नहीं पकड़ पाती ना. हर चोर को थोड़ी ना कोई पकड़ पाता है, फिर तो चोरी होता ही नहीं. सो
Somebody can debate that progressive taxation is not good. Regressive, that is decrease in the tax as the income increases. Proportion and ad valorem. Proportional matlab jitna income, same tax. 1 lakh 20%, 2 lakh 20%, 5 lakh 20%, 50 lakh 20%. 10% tax on all income, regardless of anything. This is called proportional. Ad valorem. मान लीजिए कोई स्टूडेंट ने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किया, 30,199 पे किया for 2 subjects. When you join for 2 subjects, you paid 30,199. Then the tax on 30,199. When you join for all 5 subjects, 68,199. Tax on that. Ad valorem मतलब वैल्यू के ऊपर. 2 रुपया का गुड्स के ऊपर भी 18%, 20 रुपीज का गुड्स पे भी 18%, 2000 का गुड्स पे भी 18%. That is called as Valorum principles. Valorum principle means goods का value के ऊपर. It's, you can say, a type of indirect tax. The types of taxation in UK, which will be syllabus of entire. Just यहाँ पर तो एक paragraph is written. What are the types of tax which are there in our syllabus? UK में UK tax system. First of all, income tax. This tax system is administered by HMRC. ये HMRC है. पूरा किताब में 5 करोड़ बार HMRC लिखा हुआ है. HM Revenue and Customs. हाई कमीशन या कुछ होएगा, रेवेन्यू एंड कस्टम, शॉर्ट में बोलते हैं HMRC. And in the HMRC, the tax syllabus means your syllabus. In your syllabus, what are the types of tax are there? What are the types of incomes are there? The UK tax system, first is income tax. Income tax is applicable for individuals. They are not talking India में corporate भी income tax pay करता है, उसको income tax ही बोलते हैं. But in UK they say income tax means it is tax on income of individuals. Individuals को income कैसे होएगा? As a salary, as a business. You are doing job somewhere, you are getting salary income, or you are doing business in your own name. Proportionate means whatever your income, the tax will be a fixed percentage. Whether you are earning 1 lakh, 5 lakh, 50 lakh, 500 lakh. Ad valorem is not related with the income. Ad valorem is based on value of the goods. Whether the value of the goods $2, $20, $100. Goods का quantity नहीं, goods का value. So valorem is applicable for value of the goods, type of indirect tax. But proportional tax is not there in India and UK. कहीं भी नहीं है कि आपकी जितने income होगी, tax percentage is fixed. So this is based on income, whatever earnings, a fixed percentage. This is based on value of the goods and services. The value of the goods will have a fixed percentage. आप बोलेंगे दोनों ही 10 और 20% तो same है. This is income tax and this is indirect tax. This is VAT based on value of the goods. So when we say in UK income tax, then the income tax is the word used for individuals in UK. Those who are individuals in UK, for them income tax, whether it's on salary income, whether it's on business income. TDS, tax deducted at source. Anybody knows what is TDS? Anybody knows what is TDS? At least salaried employee को तो पता होएगा. What is TDS? क्या भाई? Soman, what is TDS? Yes, sir. हाँ. Tax deducted while we are generating that income. I mean to say that. Sourced by the employee. Yeah. Means that ki suppose you are working in an organization where your salary is in a year 5 lakh. So you are coming in the slab of 2 lakh 50 to 5 lakh. So in India the tax is 10%. So when the employer will be giving you salary, your tax on the income the employer will deduct from salary and employer will pay to the government on your behalf. This is not indirect. Maybe your employer is paying, but the employer is bound to do that tax deducted at source. There are so many incomes which the government has a provision in India, in UK,
that when you are paying those types of income to the other party, then you will deduct tax on that and you will pay to government. That is called in India TDS, tax deducted at source. In UK the name is pay. Pay as you earn. Pay as you earn. इंडिया में टीडीएस बोलते हैं, वहां पे ही बोलते हैं. तो जो लोग भी यूके में जॉब करते हैं, इंप्लॉई है, उन लोग को जो सैलरी अपने इंप्लॉयर से मिलता है उस पे टीडीएस काट कर इंप्लॉयर गवर्नमेंट को दे देता है और गवर्नमेंट आपको बैलेंस सैलरी पे करता है. हमारे केस में मेरे को सराफ गुरुकुल से डायरेक्टर रेम्यूनरेशन मिलता है, तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जो टैक्स अमाउंट है, सराफ एकेडमी को पता है कि प्रकाश सराफ का डायरेक्टर रेम्यूनरेशन टोटल में कितना है, तो उसके ऊपर जो साल का टैक्स होता है हर महीना वो टैक्स अमाउंट काट कर मेरे को सैलरी मिलता है. इवन तो काटने वाला मैं ही हूं. सराफ गुरुकुल कौन है? प्रकाश सराफ ही तो है. बट स्टिल इफ आई एम गेटिंग 2 लाख रेम्यूनरेशन फ्रॉम सराफ एकेडमी, सराफ गुरुकुल, तो 2 लाख में से टैक्स अमाउंट माइनस करके विच इज कमिंग अराउंड 30,000, आई एम गेटिंग 1,70,000 and 30,000 paid by Saraf Academy to government. My income is 2 lakh, but on that income the tax is paid as a TDS, as a pay. बहुत सारी इनकम में होता है कि टैक्स माइनस करके आपको इनकम होती है. अगर आप मान लीजिए बैंक में एफडी करते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा टीडीएस माइनस करके मिलेगा. इन यूके, इन इंडिया, इन यूके पे, इन इंडिया इट इज टीडीएस. आपको इंटरेस्ट का पैसा टीडीएस माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट दैट यू विल बी गेटिंग. सो फॉर यू इट इज एन इनकम, बट द अदर पर्सन हु इज पेइंग यू, दैट पर्सन एक्सपेंडिचर, ऑन दैट ही विल डिडक्ट टैक्स अमाउंट, he will pay to government, balance amount he will pay to us. So in case of income tax, when the individuals are getting income, बहुत जगह TDS पे ही कट जाता है. But when suppose I am getting from Saraf Academy 1,70,000, but my remuneration from Saraf Academy is 2 lakh, 30,000 TDS. When I will be filing my income tax return, I will be showing in my income 2 lakh into 12, 24 lakh director remuneration. I will not be saying 1,70,000 because I have my other income. There is some saving income which is not concerned with Saraf Academy. There is some other income, all added. On all added, I will calculate the tax. Out of the tax, whatever the TDS paid, whatever the pay paid, I will deduct. Balance I will pay to government. I will calculate, I will consider income in my computation, gross income, without deducting pay, without deducting TDS. Because I need to calculate tax on my entire income, and then whatever TDS or pay paid, balance I will pay to government. So there are so many incomes in India. We have section 194A से लेकर Z तक, 194A, B, C, अगड़म बगड़म, A, B, B, whatever, I don't know sir. वैसे ही वहां पर भी होएगा, बट आपके सिलेबस में अभी पे TDS कुछ भी नहीं है. बस इतना बोला हुआ है कि when the income is given in the question after deducting pay, you consider in computation gross income. Always incomes are given gross only in the questions, but if by chance net is given, make it gross and then do the calculations. For UK, income tax means tax for individuals, not for company. India, income tax means for company also. National insurance contributions. National insurance contributions इंडिया में है. इंडिया में पेंशन फंड वगैरह है. इंडिया में there are different types of schemes which are mentioned in 80C. वहां पर एक अलग से है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस, अलग से टॉपिक है आगे, NIC, बिग टॉपिक. National insurance contributions are payable by individuals who are either employed or self-employed. अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो PF ESI है. ESI क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. अगर आपके यहां पर इंडिया में रूल है 20 लोगों से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपके सभी इंप्लॉय के अगेंस्ट में ESI पेमेंट करना होगा. ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ESI पेमेंट. वहां पर उसका नाम क्या है? नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन. इफ यू आर एन एम्प्लॉयर एंड यू हैव एम्प्लॉय वर्किंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कब कहानी मेरे को नहीं मालूम है, आपको हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस देना पड़ेगा. वो भी एक टाइप का टैक्स है. नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन आर पेएबल बाय इंडिविजुअल्स
who are either employed or self-employed. If you are self-employed as an individual, you need to pay national insurance contribution. If you are employed and you are earning huge salary, then in that case आपको NIC देना है और आपका employer भी देगा. NIC are also payable by businesses, sole trader or companies in relation to their employees. इंडिया में भी ESI एम्प्लॉय भी देता है, एम्प्लॉयर भी देता है. ESI का पैसा बाद में एम्प्लॉय को मिल जाता है. When they retire and all that, वो पैसा उनको मिल जाता है. वो पैसा कहां लगता है? वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है. That money is used for education, for infrastructure, for long term projects. गवर्नमेंट उनको प्रमोट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट आपसे ये तरह का टैक्सेस ले रही है. यूके में भी है, इंडिया में भी है. इंडिया में ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, वहां पर नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशंस. मैंने इंडिया का ESI एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन यहां पर NIC पढ़ना पड़ेगा बिकॉज आपके सिलेबस में सिंपल टॉपिक है, थोड़ा स्टोरी है, कैलकुलेशंस है. दैट इज अनदर टैक्स पेएबल ऑन एम्प्लॉयमेंट. NIC, National Insurance Contribution Tax, payable by every individual in UK if they satisfy certain conditions. Capital gain tax on sale of property, on sale of shares, on sale of bonds, on sale of antique assets. मेरे पास 50 साल 100 साल पुराना कोई एसेट्स है, कोई कुछ है जिसको बेच रहा हूं, एंटिक कोई सीनरी है, कुछ है, then that is capital gain tax. Capital gain tax is payable by individuals on the disposal of capital assets. Capital assets, land, buildings, shares, but also include antiques. अगर कोई बहुत पुराना एंशिएंट चीज आपके पास है, कोई सीनरी है, कुछ है, वो सबको बेचने से भी कैपिटल गेन टैक्स आएगा. दिस इज नॉट योर बिजनेस. सपोज आई एम परचेजिंग मोटर कार इन प्रकाश सराफ नेम, and then I am selling the motor car after 4 or 5 years. My business is not selling motor car. For me, motor car selling gain is capital gain. But for Maruti company, they are selling motor car every day. For them, Maruti company motor car sale is a business income. इतना कॉमन सेंस हम लोग को लगाना है. कैपिटल गेन इज द गेन ऑन सेल ऑफ दोज थिंग्स विच इज नॉट योर बिजनेस. मेरे को ट्यूशन फीस मिलता है, वो मेरा बिजनेस है. कंप्यूटर बेचना मेरा बिजनेस थोड़ी ना है. So that is payable on capital asset sale. Generally capital assets are this, but there are 3 to 4 topics on capital gain. We will discuss one by one what are the capital assets, when it is a sale, what tax is payable and all that. In UK, corporation tax means tax payable by companies. Agar Saraf Gurukul Private Limited is paying tax, then in UK it is called income tax. No, it is called corporation tax. Corporation tax means tax paid by corporates in UK. Corporation tax is payable by companies on all their income, whether it's a capital gain, whether it's a business income, anything. For UK, tax payable by companies called corporation tax. Inheritance tax. इंडिया में भी पहले गिफ्ट टैक्स था, मैंने पढ़ा था. गिफ्ट टैक्स आई स्टडीड इन CA इंटर, CA फाइनल. But now there is no gift tax. But UK में अभी भी है inheritance tax, type of gift tax. Inheritance tax is payable on the value of someone's death estate, but can also relate to the certain gifts made during a person's lifetime. मान लीजिए I am died. Whatever my assets, my family will get, my wife, my son and all that. या मान लीजिए मैंने विल में लिख कर गया है कि विल में मेरा एसेट्स इसको मिलेगा, निशांत को मिलेगा, इफ्तिकार को मिलेगा, मेरा मर्जी. When I will die, on my assets, there is a tax payable called inheritance tax. Who will pay? Who will be getting that assets? If my assets, my wife is getting, then she will be paying tax, inheritance tax. From where? From my assets. और क्या? देना पड़ेगा. And there are tax on gift also. If I am making gift for lifetime, if I am making gift at the time when I am alive, and during alive I am giving gift, that gift is given for whole life, that I will not take back, then the tax is there on a lifetime gift also. Inheritance tax, the word is used because it is on the death, but this covers gift tax also. In India there is no gift tax, because क्यों? इंडिया में जब गिफ्ट टैक्स था कोई देता ही नहीं था. There was not a single few persons who were paying gift tax. तो गिफ्ट टैक्स एक्ट बनाओ, रिटर्न लगाओ, ये सब करो. गवर्नमेंट का उतना खर्चा लगता तो उससे तो कम पैसा आता था, गवर्नमेंट बंद कर दिया.
around 5, 7, 8 years back, I don't remember, gift tax act is abolished in India. इंडिया में कोई गिफ्ट टैक्स एक्ट नहीं है, कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, बट इन यूके दे हैव. इट्स अ बिग टॉपिक, slightly confusing also. We will be doing later. This is there in the syllabus. Value added tax, GST, on consumption of goods and services, GST is payable. आपके सिलेबस में यही सारे टैक्सेस हैं अभी. One is income tax, which is payable by individuals. One is national insurance contribution payable on self-employment and employed income, and payable by the employer on behalf of employee, national insurance contribution. Capital gain tax on sale of assets, corporation tax by corporate, inheritance tax on death and on gift, value added tax on consumption of goods and services. Just that आपको इससे इसको मैच करना है ऐसे ही. Inheritance tax is related with what? Capital gain tax related with what? So income tax, which one will be the matching one? With the income tax किसको मैच कर सकते हैं? Yes, हेमराज जी बोलिए. Payable by individual. पेएबल बाय इंडिविजुअल्स ऑन देयर. ऐसा एग्जाम में नहीं आ रहा है, इट इज जस्ट एक बार रिवीजन करने के लिए मैंने कुछ. एग्जाम में इतना लॉलीपॉप नहीं आता है, ठीक है. सो इट इज इनकम टैक्स पेएबल बाय इंडिविजुअल्स ऑन देयर अर्निंग्स. तो कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए क्या होएगा? पेएबल बाय कंपनीज ऑन देयर गेन्स. इंडिया में वैसे इन दोनों का नाम इनकम टैक्स ही है, बट वहां पर कंपनी बोलेंगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स. इनहेरिटेंस टैक्स किससे रिलेटेड है? बिजनेस इन रिलेशन टू देयर स्टाफ लेफ्ट इन योर विल. या तो आपने वाइफ बच्चों को दिया है या आपने किसी और को जिसको भी दिया है भाई. इनहेरिटेंस टैक्स पेएबल ऑन एसेट्स लेफ्ट इन योर विल. फिर उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स. पेएबल बाय इंडिविजुअल्स ऑन गेन्स. कैपिटल गेन टैक्स कंपनी के लिए नहीं है. कंपनी के लिए होगा तो कॉर्पोरेशन टैक्स ही बोला जाएगा, है, बट दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स ओनली. आप कैपिटल गेन टैक्स बोलोगे देन इट इज फॉर इंडिविजुअल्स. वैट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. एनआईसी फॉर इंप्लॉइज पेएबल बाय बिजनेस इन रिलेशन टू देयर स्टाफ. वही नीचे मैच करके लिखा हुआ है लॉलीपॉप में. जस्ट एक और एग्जाम्पल मैंने दिया जिसका आंसर मैंने यहां जानबूझ के लिखा नहीं है. आइडेंटिफाई विच टैक्सेस अप्लाई टू द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड स्टेट वेदर द टैक्स इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. आपको यह भी बताना है कौन सा टैक्स है. इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, एंड यह भी बताना है वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अ सोल ट्रेडर अर्न्स 1 लाख प्रॉफिट इन अ ईयर. So whether it is income tax, corporation tax, NIC, VAT क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है? Income tax. Direct income tax, because for individuals income tax and it is direct payable by the trader. दूसरा, कंपनी has a profit of 2,50,000 in a year and employ 30 employees. Corporation tax. Because the company is paying. And this is direct tax. The company has a profit of 2,50,000 in a year. An individual sells an antique table for 1 lakh which cost 40,000 8 years ago. Capital gain. Capital gain tax, which is direct. Again direct. Because you are paying from your pocket, not collecting from anybody. A business buys raw material from a supplier. Indirect. VAT. VAT and indirect. It is 1 point indirect and VAT. A company sells a factory for 7,50,000 bought for 2,53,000 years ago. बट कंपनी के लिए कैपिटल गेन वर्ड नहीं बोलते वो लोग. कॉर्पोरेशन टैक्स ही बोलना होगा. डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स. फॉर कंपनी सेलिंग एन एसेट इट इज कॉर्पोरेशन टैक्स ओनली. एन इंडिविजुअल डाइज एंड bequeath his estate of 1 lakh to his children. Inheritance tax and direct.
इनहेरिटेंस टैक्स एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट खाली यही है रॉ मटेरियल वाला, ऑल सब डायरेक्ट है, लेकिन इसमें ये कॉरपोरेशन टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स, आप कैपिटल गेन टैक्स नहीं बोल सकते, कॉरपोरेशन टैक्स डायरेक्ट है, बाई चांस कंफ्यूजन हो यहां पर, एंड दिस इज इनडायरेक्ट, ओनली इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दिस इज वैट, इन इंडिया जीएसटी, दिस इज वैट। कोई क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं आता है, दे आर नॉट आस्किंग, बिकॉज जब आप आगे पढ़ेंगे एंड वन बाई वन व्हेन यू विल बी स्टडिंग ईच टॉपिक, तो ये तो नॉर्मल ब्रेड एंड बटर बन जाएगा, दिस अ नॉर्मल थिंग। मे बी अभी हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, बट दैट इज अवर सिलेबस, सो दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी कंफ्यूजन, दे डोंट आस्क एनीथिंग। दे क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्होंने टैक्स इविजन और टैक्स अवॉइडेंस, कभी कभी थोड़ा बहुत एथिक्स, और कुछ नहीं, और यहां से कुछ नहीं पूछता है, जस्ट दैट इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स सब्जेक्ट। नाउ दे आर सेइंग एचएमआरसी का स्ट्रक्चर, तो एचएमआरसी में सबसे ऊपर है कमिश्नर्स, इंडिया में भी सबसे ऊपर कमिश्नर होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द क्वीन, इंडिया में दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब इंडिया में वो लोग को अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर करता है, कौन करता है ये नहीं मालूम है, वहां पर कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स एचएमआरसी आर अपॉइंटेड बाय क्वीन। द मेन ड्यूटीज आर लॉ बनाओ और लॉ का एडमिनिस्टर करो, हर साल का बजट फजट बनाओ, लॉ बनाओ और उसको एडमिनिस्टर करो, वेदर द लॉ आर बीइंग फॉलोड और नॉट। फिर ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू एंड कस्टम्स, उनको कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। फॉर एवरी यूके टैक्स ऑफिस देयर इज अ ऑफिसर्स। इंडिया में भी जब आप अलग अलग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पर आपको अलग से कमिश्नर के अंडर लोग मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड ऑफिसर्स। इनका काम है डे टू डे वर्क एचएमआरसी का हैंडल करना एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एचएमआरसी एंड टैक्स पेयर। विद द मूव टू ऑनलाइन फाइलिंग, सारा जगह इंडिया में यूके में सब ऑनलाइन फाइलिंग है, ये जो ऑफिसर्स का जनरल ये जो काम है डे टू डे वाला काम बहुत कम हो गया है, बट स्टिल इन यूके एंड इन इंडिया इंडिविजुअल कैन सबमिट फिजिकल रिटर्न भर के, ऑनलाइन भरने का जरूरत नहीं है, कंपल्सन नहीं है, बट इंडिविजुअल भी इंडिया में सब ऑनलाइन ही भरते हैं आजकल, यूके में भी सब, तो थोड़ा सा काम ऑफिसर्स लोग का कम हो गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द टैक्स पेयर एंड एचएमआरसी, अंडर सेल्फ असेसमेंट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर टू इंश्योर दैट करेक्ट अमाउंट ऑफ इनकम इज रिपोर्टेड टू एचएमआरसी। आपकी ड्यूटी है कि आप सही इनकम बताओगे गवर्नमेंट को एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स आप पे करोगे। इंडिविजुअल टैक्स पेयर कैन हाउएवर रिक्वेस्ट द ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू, इंडिविजुअल नॉट कंपनी, इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट टू द ऑफिसर्स कि भाई हमारा कैलकुलेशन करके दो, तो ऑफिसर्स को कैलकुलेशन करना होगा। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कलेक्टिंग एंड एडमिनिस्टरिंग आईटी सीजीटी, यानी कि जो ऑफिसर्स लोग उनका काम है कलेक्टिंग और एडमिनिस्टर करना, पेइंग यूनिवर्सल क्रेडिट टैक्स क्रेडिट एंड चाइल्ड बेनिफिट, collecting the repayment of loans, ensuring adherence to minimum wages, protecting society from fraud and all that. The source of law, one is tax law, which is developed by statute, one is legislation, are there for adherence is mandatory, they are updated each year, हर फाइनेंस एक्ट में नया लॉ आता है। हम लोग जिसको इंडिया में बजट बोलते हैं, यूके में भी वही बोलते हैं। They include statutory instruments which are issued where detailed notes are required. बहुत सारा चीज के बारे में डिटेल्ड नोट्स रहता है। केस लॉ, लॉ आ गया, कोर्ट में केस हो रहा है उसके अगेंस्ट में, somebody is filing a case, और केस लॉ में कुछ डिसीजन चेंज हो गया इन द कोर्ट, दैट बिकम्स द रूल, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ। केस लॉ इज ओवर रूलिंग द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट में कुछ चीज है लिखा हुआ है लॉ में बट वो समझ में नहीं आ रहा है, और केस लॉ में कुछ अलग डिसीजन हुआ, दैट केस लॉ बिकम्स रूल। एचएमआरसी पब्लिकेशंस, बहुत सारा पब्लिकेशन इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पर भी टू इंप्लीमेंट टू अंडरस्टैंड इन कॉमन सेंस लैंग्वेज निकलता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस प्रोवाइड एचएमआरसी इंटरप्रिटेशन एंड ऑफन प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन। एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी कंसेशन, बहुत सारा बिजनेस, एग्रीकल्चर, मान लीजिए माइनिंग, मान लीजिए पेट्रोल, कुछ होएगा, सब इंडिया में भी है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कंसेशंस का रूल निकलता है, वो रूल्स अलग अलग स्पेसिफिक वे होता है। नॉर्मली हम लोग इसको इंडिया में यूके में सब जगह वी वांट टू रिड्यूस देम, बट फिर भी कुछ ना कुछ लॉज स्पेसिफिक तो होता ही है। इंटरनल गाइडेंस मैनुअल लोगों के समझने के लिए वेबसाइट, लीफलेट्स, बुक्स आर देयर, जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ये सब एचएमआरसी का स्टैट्यूट नहीं है, दीज आर ऑल लीफलेट्स, वेबसाइट ये सब पे लिखा वो सब चीजें हैं ये सब।
बिकॉज कॉमन मैन को एकदम टैक्स लीगल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा. कभी आप मन में सुने होंगे बेयर एक्ट, कोई सुना है? इनकम टैक्स बेयर एक्ट, कंपनी लॉ बेयर एक्ट. बेयर एक्ट मीन्स द एग्जैक्ट लैंग्वेज डेवलप्ड इन द स्टैट्यूट एंड लॉ. बट बेयर एक्ट को जब आप पढ़ेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे तब इन दैट केस वो अलग हो जाएगा. सो नॉर्मली इन सिलेबस, इन एग्जाम्स एंड एवरीवेयर वी डोंट रीड बेयर एक्ट, वी रीड मैन्युअल्स, वेबसाइट, यही सब चीज हम लोग पढ़ रहे हैं. और स्टाफ लोग के लिए, जो लोग नॉलेजेबल पर्सन हैं, उनके लिए टेक्निकल गाइडेंस पब्लिश किया जाता है विच इज नॉट अवेलेबल फॉर कॉमन पब्लिक. कॉमन पब्लिक उसको वैसे भी समझ नहीं पाएगा. टैक्स एजेंट्स वगैरह के लिए भी टेक्निकल आर्टिकल्स होता है. जस्ट दे आर सेइंग दैट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. हियर आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड कैन अप्लाई द टैक्स लेजिस्लेशन. सेंटेंसेस है कौन सा फॉल्स और ट्रू है. एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा. वाई आई एम सेइंग एग्जाम में नहीं आएगा? टेंशन कम करने के लिए. बट आए भी तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जब आप एक बार दो बार ध्यान देंगे अपने आप हो जाएगा. Case law is written by HMRC. Is this sentence correct up till now? HMRC is writing statute and provisions. HMRC is not writing case law. Case law, when there is a case in the court and the court decides, the tribunal decides that this case is decided like this, that is not written by HMRC and gives guidance on interpretation on difficult aspects of tax legislation. Totally wrong. That is not a case law. Case law are decided, cases are decided in the court of law, and then the judge or anybody who is there, they are presenting those case laws outcome. That is not written by HMRC. Extra statutory concessions are given to specific taxpayers to relax tax laws. Yes, if you are doing agriculture business, this business, that business, some extra concessions are there. It is there in UK, it is there in India, सभी जगह होता है. Case laws decisions can never be binding. It is maximum time binding. Case laws ही तो आगे रूल बन जाता है. तो case laws can never always generally binding on the future cases. This is false. This is true. This is false. And this last one, adherence to tax legislation statute is mandatory by taxpayers. Is this correct? Adherence to tax legislation statute is mandatory by taxpayer. I am in India. I need to abide by the tax laws and regulations published by the government in the budget of February 2022. Do I need to abide? Mandatory है मेरे लिए. नहीं होगा तो और क्या होएगा भाई? If I will not follow the tax laws, then to what I will follow? So adherence to the tax laws or statute legislations is mandatory for every taxpayer. This is true. This one is true, but the middle one, this one and the first one is false. Statement of practice are written by HMRC and give guidance and interpretation on difficult aspect. Case law is made by judges. Case law HMRC नहीं लिखता, judges लिखते हैं. Judges decision लेकर case law का outcome निकालते हैं. Special rules है अलग अलग लोगों के लिए. Yes, many case law decisions form a binding. Many, most of them are binding. And then the last one is again true, that you need to abide by the tax laws, regulations, statutory guidelines of the country. डबल टैक्सेशन, इंटरेक्शन ऑफ यूके. ऑब्वियसली एक इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं लगेगा. वन इनकम विल बी टैक्सेबल वंस ओनली. दैट इज देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन यूके. The laws of two countries may conflict, which means taxpayer can be paying tax on the same source of income in two countries. No. In this situation, a double taxation, also known as bilateral double TT agreement, may be agreed between the two countries to resolve the issue by either exempting the income in one country, or maybe the tax paid in one country can be claimed as a relief. Even if a treaty does not exist, still the tax on income is not twice. मान लीजिए कोई डबल टैक्सेशन ट्रीटी नहीं भी है तो भी इनकम पे डबल बार टैक्स नहीं लगेगा. टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन, टैक्स इवेजन चोरी, टैक्स इवेजन illegal seeking to pay less tax than due by deliberate HMRC. It carries a risk of criminal prosecution, fines, penalties. The main form of tax evasion, suppressing information, झूठ मूठ का information, suppressing false information. The proceeds from tax evasion are treated as theft, चोरी, trafficking, ये सभी है वो. और उसके ऊपर जोर का टैक्स, फाइन्स, पेनल्टीज ये सब लगेगा. Tax avoidance is any legal method to reduce tax burden. For example, utilizing tax authorities
tax shelters such as investment saving, जैसे इंडिया में 80C है. Tax avoidance measures, while legal, are not always effective. Promoters of the tax avoidance schemes are now required to disclose details enabling HMRC to close. अगर टैक्स अवॉइडेंस कोई तरीके से हो रहा है, जैसे इंडिया में HUF से होता है, गवर्नमेंट को HUF बंद कर देना चाहिए. HUF इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट. यूके में कोई HUF नहीं होता है. यूके में इंडिविजुअल, कंपनी, पार्टनरशिप ऐसे है, HUF बोलकर कुछ नहीं होता. बट इंडिया में HUF है. द कोर्ट में डिसरिगार्ड एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट हैव नो कॉमर्शियल पर्पस वेयर डिजाइन विद द एम ऑफ अवॉइडिंग टैक्स. होता क्या है, सपोज आई एम सेलिंग एन एसेट, नॉट अ बिजनेस एसेट्स. मान लीजिए कोई एसेट, कैपिटल गेन, आई एम सेलिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, देन आई विल बी नीड टू पे टैक्स एट दैट मोमेंट. बट इफ आई विल पे सेल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देन आई विल पे टैक्स आफ्टर 1 ईयर. मतलब बहुत सारा ऐसा कोस्ट का डिसरिगार्ड कर सकते हैं, करते, बिकॉज इट इज अवॉइडिंग टैक्स बाय लीगल मीन्स. अ जनरली एंटी अब्यूज गार इनेबल्स. गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता चलता है तो गवर्नमेंट चेंजेस करती है, जैसे एडवांस टैक्स. नॉर्मली द रूल्स आर देयर. एवरी ईयर व्हेन यू अर्न इनकम यू नीड टू पे टैक्स विद इन द ईयर. फर्स्ट क्वार्टर में कमाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर में अर्न करेंगे, सेकंड क्वार्टर के बाद, यानी कि इन सब चीजों को गवर्नमेंट कर्ब करती रहती है. बिकॉज मे बी इट इज a legal way, but the government don't want that. You should be able to do that. Professional ethics, when government want that the tax should be paid, that the person should be ethical. The fundamental ethical principles of ACCA is there in every subject. In financial accounting, in financial reporting, in management accounting, सब जगह ethics बनोड़ा, और यही सेम बात लिखा हुआ है. सबसे पहले, when you are any person, you need to be objective. Objective means whatever you say, whatever you want to communicate, you need to say based on proof, facts. You should not be biased. You should not be supporting anybody. Proof, facts, without unbiased, you should be giving your opinion. So when you are giving advice to clients, you should not be biased. You should not be thinking about client. You should be thinking about client and the HMRC both. You should be saying anything, you should be supporting anything based on proof, facts. Then you are said as you are objectively correct. Professional competence and due care. You should always upgrade yourself. New tax laws are coming, you need to upgrade yourself with the new laws. Because if you don't upgrade, then in that case you cannot give proper service. मान लीजिए आप कंसल्टेंट नहीं है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं खुद. कोई जरूरी थोड़ी ना एजेंट यू नीड टू हायर. यू डोंट हायर एजेंट, but you need to upgrade your knowledge. Because if you are not knowledgeable, if you don't know the things, then actually you are unethical. You should not be doing anything which you don't know. Members have an ongoing duty to maintain professional knowledge and skills. Members should be diligent and act in accordance with applicable technical laws. Professional behavior. Members should be stopped from doing any violation of law, from doing anything which is adversely affecting others. आपको ऑलवेज दूसरे का बारे में सोचना है, लॉ को मानना है, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है, अपना काम टाइम पे करना है, डिले नहीं करना है. दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल बिहेवियर. मेंबर्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी कंडक्ट दैट माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. इंटेग्रिटी, गांधी जी का बंदर. नेवर से रॉन्ग थिंग, नेवर सपोर्ट एनी रॉन्ग थिंग, नेवर come across to anything which is wrong. कुछ के बारे मत बोलो, इंटेग्रिटी मेंटेन करो. Members should act in straightforward and honest, enacting professional competence. Behavior, members should be demonstrating tolerance and mutual respect. Integrity आपको दिखाना है. Confidentiality. Whatever information you are getting about your clients, your income and all, should not be saying to anybody. Unless and until there is a legal duty to disclose any police or anything. And you have the right to disclose, you have the obligation to disclose, that's other thing. Don't use any benefit for your personal benefit. Don't any information, use information of the clients for your personal benefit. And at the same time, don't disclose the information of your client to the income tax department. Because as we discussed earlier, you can leave the client, but you don't say to the government that I have left the client for this reason. Advice on the taxation issues. A member owes duties and responsibility both to client and HMRC. इससे related कभी कभी question आ जाता है. This entails that ensuring that information provided to HMRC are correct, complete, not
assisting a client to plan or commit an offense. आपका काम नहीं है कि client को गलत बातें बोलना. If in the course of work client an error comes in light, a member should take the following action. गलती पता चला, क्या करेंगे? Explain to the client the need to notify HMRC as soon as possible and consequences of not doing so. Client को बोलिए HMRC को बोलना है, ठीक करना है, नहीं करेंगे तो क्या होएगा? If the client refuses to make full or frank disclosure, the member should set the consequences in writing and consider whether it is appropriate. अगर क्लाइंट नहीं मान रहा है तो बोलिए, उसको बताइए imprisonment, fines, penalties, ये सब क्या होएगा. If the client still नहीं मान रहा है, then the member ceases to act. क्लाइंट का काम मत करिए and should advise HMRC that the member is no longer acting. आप HMRC को, गवर्नमेंट को बता दीजिए you are not working for the client and consider his or their opinion, their position under the money laundering regulation. मनी लॉन्ड्रिंग MLRO में जाना है, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो वो देखना है. मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है? A person is engaged in money laundering when they are concealing, disguising, convert, transfer, remove any criminal property, or enter into, become concealed in an arrangement which they know or suspect facilities the acquisition, retention, use or disposal of criminal property. बस वर्ड क्रिमिनल को पकड़ लीजिए. क्रिमिनल प्रॉपर्टी छुपाना, क्रिमिनल प्रॉपर्टी किसी और को देना, उसके साथ अरेंजमेंट करना, एक्वायर, यूज और हैव पोजीशंस ऑफ क्रिमिनल प्रॉपर्टी. मान लीजिए गवर्नमेंट ने छापा मारा, आपके पास बहुत सारा नोट्स मिला, 2000 का नोट्स एंड ऑल दैट, क्रिमिनल प्रॉपर्टी है. क्रिमिनल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स इवेजन. आप क्रिमिनल प्रॉपर्टी मतलब समझ लीजिए वो पैसा, वो रिसोर्सेस जो टैक्स के बगैर, टैक्स दे बगैर आपने जनरेट किया है. Those are all called criminal properties. Businesses, this is called, what do we say? This is called money laundering. Criminal property related act is called money laundering. A business within the regulated sector must appoint a money laundering reporting officer MLRO within the firm. बड़ी कंपनियों में जो भी इनका रूल होएगा, कंपनी में अलग से मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर होना चाहिए. Suspicion of money laundering needs to be reported to MLRO. You need to report as a tax agent advisor for the organization any money laundering cases to MLRO, who then decides whether it should be reported to National Criminal Agency. आप MLRO को बोलेंगे, MLRO बाद में डिसाइड करेगा कि नेशनल क्रिमिनल एजेंसी को बोलना है कि नहीं. अगर नेशनल क्रिमिनल एजेंसी को बोला जा रहा है, इंप्लॉय को नहीं बताएंगे, इंप्लॉयर को नहीं बताएंगे, आई मीन टू से क्लाइंट को नहीं बताएंगे. A client should not be advised that a report has been made. Otherwise, the client will involve in tipping off those things. उन सबको छुपाएगा, बदल देगा. अगर आप ये सब नहीं करते हैं, MLRO को बोलना ये नहीं करते हैं, जितना भी ये सारा लिखा हुआ है, you are not advising client to don't do the wrong things and all that. If you don't do that, then the fines and penalties, civil penalty up till 50,000 pound, not up till. HMRC may publish details of the agent in their publications. वो एजेंट के बारे में HMRC दुनिया को बता देगा, ये फालतू एजेंट है, गलत काम करता है. HMRC may have rights of access to all working papers of the agent. और आपने जो भी वर्किंग पेपर्स आपका HMRC सब आपसे ले लेगा. कौन सा करेगा HMRC, we don't know. But these are the fines and penalties if you are not following what you should be doing as a agent of income tax. Now, whether you are an agent of income tax because you have ACCA qualification or not doesn't matter. Agent कौन बन सकता है हम ये नहीं पढ़े हैं. Not in the syllabus, not written. There are rules who can become agents. There are rules those who can become agents. So वो जो agents है वो कौन बन सकते, मैंने वो डिस्कस नहीं किया, लिखा हुआ ही नहीं है. Maybe I can do Google search, I can find who can be the tax agent in UK. नहीं जरूरत. अपनी बात करें, जो भी टैक्स एजेंट होएगा, अगर वो लोग ये काम नहीं करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग को रिपोर्ट नहीं करेंगे, एनसीएलटी को नहीं बताएंगे, क्लाइंट को नहीं बोलेंगे, ठीक नहीं करेंगे, अपना काम अलग नहीं करेंगे, तो दे में बी फाइन्स एंड पेनल्टीज. द एजेंट के लिए फाइन है, क्लाइंट के लिए क्या है वो तो अलग है. डिसऑनेस्ट कंडक्ट ऑफ एजेंट्स विल बी चार्ज 50,000 तक फाइन. देयर नेम्स विल बी पब्लिश्ड इन द मैन्युअल्स and their working papers will be taken by the HMRC. I mean to say that जो मैं शुरू में जनरली बात कर रहा था, वो जनरल बात को इंस्टीट्यूट ने अपने राइटअप में प्रॉपरली मेंशन करके लिखा है.
which they are saying as the types of tax, direct, indirect, structure, HMRC, commissioner, officers, and all that, then in that case there is ethical, there is tax avoidance, there is HMRC proceedings, money laundering, double taxation, and then source of law. इनसे कुछ एग्जाम में आए नहीं आए, लेकिन आपको एक स्टैंड अप होना है. यू नीड टू नो दिस so that you will be able to study taxation subject. इसमें यहां पर टाइप्स ऑफ टैक्सेशन में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, देन एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टैक्स, देन वैट. आपके सिलेबस में वही है, लेकिन सब अलग से टॉपिक है. ऑल आर सेपरेट टॉपिक. इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो कॉमन सेंस, बट उससे बहुत क्वेश्चंस आते, मेनी क्वेश्चंस कम्स. That is a summary of how to do income tax computation. उसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत है, बहुत जरूरी भी है, बट दिस टॉपिक इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स. यूके इनकम टैक्स, यूके में टैक्स कैसा है, क्यों है, यूके में लॉ कैसे बनता है, एचएमआरसी कौन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यूके में लॉ वगैरह बनने के लिए सोर्स कहां से आता है, और सम टेक्निकल टर्म, एथिकल प्रिंसिपल्स, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, डबल टैक्सेशन, और एचएमआरसी के साथ हमारा क्या ड्यूटी है एज एन एजेंट, व्हाट वी नीड टू डू, दैट इज कवर्ड. दैट इज थियोरेटिकल एस्पेक्ट, नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व, नॉट कमिंग इन द एग्जाम ऑल्सो, 1 or 2 marks समथिंग, बट दिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग योर टैक्सेशन नॉलेज. ये जानना पड़ता है, तब आप उसके बाद टैक्स सब्जेक्ट चालू कर सकते हैं. आपको क्या करना है, 1-2 बार रीड करना है. रीड करने के बाद देयर आर सम क्वेश्चंस इन द स्टडी टेक्स्ट. स्टडी टेक्स्ट में which one is this? No, this one is, you see, in the study text there are questions, test your understanding 3, 4, and then there are answers. You will say, where test your understanding 1? Test your understanding 1 within the chapter only. Here in the text exam kit, the questions are not there. Maybe 1 or 2 questions are there, because exam kit, since in exams it never came. Normally questions आते नहीं है, तो exam kit में इससे related questions बहुत कम है. In exam kit, let me see, is there any question? This is the paper structure. This is again tax rate slabs and all that. So questions are starting from here. This is also not, sorry. The first question is that, but from the second question, no, you can't do. Only one question you can do. In the exam kit, only one question, and here in the study text, there are 6-7 questions are there. I will not advise that you need to read study text for this topic. Just read these notes only, class slides. Once the class is over, every class after getting over, I will be sharing these class slides with all of you. I will be using that class slides till class 1, class slides till class 2. So if you are getting second class slides, first class is already included in that. I will be writing my notes in this only, which you will be getting after every class in the mail. And others are there with you in the Google Drive. You can download from there and you should be practicing from there. For this topic, my personal advice, reading the study text not required. But if you want to read, you can. There is nobody stopping you. Obviously, in the study text, these things are written in more detail. So somewhere maybe HMRC structure or something you want to read, you can read in more detail. But this is not relevant for exam. This is just for developing your starting understanding on taxation relating to UK taxation. A general common understanding about taxation in any country. Specifically about UK, but a common understanding. Okay. So just I have done first topic. I will be asking some questions in the class, in the next class, from my own source, not from anywhere.
I will be asking, we will be doing a discussion of this topic again in the next class for 10-15 minutes, maybe 20 minutes, and then we will be starting further on Friday. Okay? Leaving for today. Anybody has any query, anything to ask? Fatafat. Anik, Asutosh, Hemraj, Jainab, Jahanvi, Joy, and others. Anything to say? Leaving. Tata. Bye bye. Take care. Thank you, sir. Thank you.